everyone, this is me Rajrupa, Queen of Happiness. Welcome back to my channel. आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. From start to end, आज मैं आप लोगों को कुछ लुक्स दिखाने वाली हूँ. उसका मेकअप, स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि I am going to transform my own home into a studio. And अपने ही घर के अंदर मैं करने वाली हूँ सेल्फ फोटोग्राफी. तो अगर आपको देखना है कि कैसे मैं स्टार्ट टू बॉटम मेकअप, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी करती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. For my first look that I'm going to do, it's like quite favorite of mine. ये एक white background के ऊपर white dress पहन के मैं करने वाली हूँ. Cleaned my face with Bioderma, and now I'm going to just apply a bit of primer. And sometimes I also use aloe vera gel as primer because you know my skin is already very oily. तो ये सेल्फ फोटोग्राफी है तो मैं उतना ज़्यादा लाइट्स वाइट्स तो यूज़ करने वाली हूँ नहीं, इसीलिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस वेरी नेचुरल काइंड ऑफ कंसीलर दैट आई हैव फ्रॉम LA Girl. That is the key when you know you have makeup but it looks so natural. ओके, तो मैं अपना सिफोरा का ये स्पंज जो है इससे मैं ब्लेंड कर दूंगी. सो आई एम गोना यूज माय CC क्रीम फ्रॉम लैक्मे. सो दैट्स इट, मेरा ब्लेंड हो गया है. एंड ऑफ कोर्स नेवर फॉरगेट योर नेक. तो इसके साथ नेक का कलर मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मैच हो रहा है तो यू नो इट्स गोना लुक लाइक अ मास्क. एंड we are only going to wear mask when we go out. We are not going to make our makeup a mask. इससे वायरस तो अटकेगा नहीं. I know it's a bad joke. So I'm using my MAC Studio Fix and I use it in NC35. That's my shade. eyeshadow look के लिए मैं अपना दो पैलेट्स यूज करूंगी. ये दोनों L'Oreal का है. So I'm having used the silver shades. तो बेस के लिए मैं यहाँ पर ये जो silver shade है, you can see it. This silver shade I'm going to use. And I'm using this little thick brush क्योंकि मैं पूरा बेस बनाने वाली हूँ silver से. And I'm just aiming for a more, let's say, a little bit smoky silver eye look. I have always been doing this. मैं direct powder नहीं लगाती हूँ अपनी आंखों पर. What I do is I just take a bit of setting spray and then I blend the eyeshadow with it and then I apply, क्योंकि उससे एक थोड़ा सा blend होने में भी अच्छा होता है वो. और इसके अलावा जो होता है कि you know powder कभी-कभी collect हो जाता है, तो ऐसे करने से accumulate नहीं होगा आपका मेकअप. तो मैंने silver eyeshadow लगा लिया है, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा और build करने वाली हूँ. Of course I'm going to build upon this, and for that I'm going to use the other palette, which is a bit of a shimmery kind of a palette. So यहाँ ये जो थोड़ा सा कॉपरिश जो शेड है वो मैं हल्का सा लेने वाली हूँ, और साइड में इसको थोड़ा सा आई को डेफिनेशन देने के लिए साइड के यहाँ इस तरीके से मैं ये जो क्रीज लाइन है, मतलब हम लोग जब ऐसे आँख खोलते हैं तो ये जो क्रीज लाइन होता है ना, उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, ताकि आपका आँख का जो शेप है वो एकदम स्पेसिफिकली लगे, अच्छी तरीके से सुंदर लगे. और you know from a very afar also you know your eyes will look very well defined. So yes, that's what I'm basically trying to do here with this copperish shade. I hope they're looking equal. मेरा आईब्रो जो है मैं खुद घर पर कर रही हूँ during the lockdown. How are you guys managing? Let me know. Well, I just do it on my own with with the help of the set of epilator that I have, and I basically just like removing the extras. तो उस तरीके से मैंने अपना eyebrows किया है. So I think my eyes are just
ओके राइट नाउ. अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ऐड सम शिमर, एंड उसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक द सेम पैलेट. यहाँ पर ये जो वाइटिश शेड है वो मैं एकदम सेंटर पोर्शन में लगाऊंगी. So I'm going to take this one. This is a even thinner brush, and I'm going to take the same colors. Remember guys, the same colors. तो वही ash color का जो यहाँ मैंने लिया था, silver या ash whatever you call it, that one. फिर यहाँ मैंने लिया था ये white shade, या नहीं sorry, उसके बाद मैंने copper shade लिया था. 3 shade यूज किए हम लोग. तो ये silver वाला shade, फिर ये copper वाला shade and this white shade. तो तीनों मैं एक साथ थोड़ा सा मिला लूंगी, और जो एक shade form होगा उस shade से मैं अपना lower lining of the eye को define कर लूंगी. इसको टाइट लाइनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मैं अंदर का जो लाइन है उसके ऊपर लगा रही हूँ, बाहर नहीं. So I'll just tight line my eye. मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है सजने में घर के अंदर, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते अभी हम लोग फिलहाल, इट्स नॉट सेफ. लेकिन घर के अंदर if you dress up and do this and try this photography, self portrait या self photography, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को भी. जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू. मासा मुंडू ही है ना. शालू शालू. So stupid. Use my, this is what, Swiss Beauty का एक लिप पेंसिल है. This is my color bars 108 go on stage shade. तो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ. ये तो पूरा बाहर चला गया है. Is it okay now? Yeah, it's good. तो कॉन्ट्योर के लिए मैं अपना हुडा ब्यूटी का पैलेट यूज करने वाली हूँ. यहाँ का जो which one shall I use? ये बेज जो शेड है, I'll be using this one. तो इसके लिए मेरा कॉन्ट्योरिंग ब्रश ये वाला मैं यूज करने वाली हूँ. So I'm just taking this beige shade and basically when I say contour, I basically contour with the help of my contouring powder palette, because I don't use the cream contour because वो थोड़ा सा harsh लगता है, harsh lines create हो जाता है. तो I'm just using my powder contour palette. And in fact this is a nice tip, you know guys, that if you don't have a contouring stick also, अगर आपके पास थोड़ा सा डार्क शेड का कंसीलर है, या फिर अगर आपके पास कोई डार्क शेड का लेट्स से ब्लश है, जैसे कि थोड़ा सा रेडिश शेड हो या थोड़ा ब्राउनिश शेड का ब्लश हो, तो वो यूज़ करके भी आप कॉन्ट्योर कर सकते हो. क्योंकि कॉन्ट्योरिंग इज़ व्हाट, बेसिकली आपके स्किन टोन से जो थोड़ा सा डार्कर शेड है उससे आप शेड्स क्रिएट करो, है ना. तो कोई भी like darker shade, any dark shade you can use and then you can contour. Cheeks तो हो गया है, और I'll just define my nose with this and I think I'm good to go. And somehow मुझे भी contouring बहुत पसंद है. I don't know कितना मेकअप कैमरा में समझ आ रहा है, but you know here in the mirror I'm finding it absolutely brilliant, because you know it's like so soft look and it looks so good to the eyes, like it's like a treat to look at. It's so soothing and so nice. तो हो गया है मेरा contour. अभी जो लास्ट बाकी है that is my eyebrows, और उसके बाद I'm just going to apply my falsies. पर eyebrow के लिए I'll just be using my eyebrow pencil. तो मेरा eyebrow pencil जो है brown shade में है.
if you have been watching my video, you will know that I do my eyebrow with a brown pencil. This is from Miss Claire. बेसिकली मैं ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा ड्रामेटिक बना देता है मेरे आईब्राउज को, एंड आई डोंट लाइक दैट क्योंकि मैं लाइक इट लुक्स टू मच, मुझे टू मच चीज़ें नहीं पसंद है. हाँ या सो आई लाइक टू कीप थिंग्स सॉफ्ट एंड नेचुरल, और इन एनी वेज एज आई सेड कि ये लुक बहुत ही सॉफ्ट एंड नेचुरल होने वाला है, तो आईब्राउज को भी मैं सॉफ्ट एंड नेचुरल रख रही हूँ. इफ़ यू हैव नोटिस आई स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई आईब्राउ, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा कलर रह जाता है तो मैं उसे दोनों साइड स्प्रेड कर सकती हूँ. एंड आई एम जस्ट फिलिंग अप द गैप्स. ये पोर्शन में जैसे कि देयर आर लिटिल लेस नंबर ऑफ लाइक हेयर्स, तो वो जो गैप्स है उसको आप ऐसे फिल कर दो. एंड देन इस मिस क्लेयर में एक ऐसे ऑलरेडी ब्रश है, उससे मैं थोड़ा ब्रश कर देती हूँ ताकि एक डेफिनेशन मिल जाता है मेरे आईब्राउ को. बट ऑफ कोर्स आप स्पूली ब्रश यूज़ कर सकते हो. आई जस्ट शो यू व्हाट इज अ स्पूली ब्रश बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ऑल ऑफ यू आर मेकअप गीक्स, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, और ऑल दोज ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू लर्न मेकअप, दिस इज अ स्पूली ब्रश. सो इससे आप अपना आईब्राउ भी डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से. इट लुक्स वेरी नाइस. और उसके साथ समटाइम्स इफ़ आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा अगर आपका आई लैशेस क्लैम्प ऑन हो जाता है, लाइक एक के साथ एक स्टिक ऑन हो जाता है, then you can just do this and it helps in separating your eyelashes. तो मेरा makeup look is almost complete. All I need to do is highlighter और falsies. तो मैं पहले highlighter कर लेती हूँ. Okay guys, so I'm going to highlight with my strobing stick from Maybelline. This is Master Strobing Stick, and this is like a solid highlighter and cream based highlighter है ये basically. तो इसको लेके मैं all the portions of my face which we highlight, that is like the bridge of the nose, इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसको blend करूंगी. Cupid's bow, ये जो पोर्शन है आंखों के नीचे. नाउ द वे आई एम अप्लाइंग इट दैट इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट वे. यू कैन ऑल्सो टेक इट इन योर फिंगर्स एंड यू कैन अप्लाई इन दिस वे. बट सिंस प्रेशर, अगर आपके लिए इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपके लिए अगर प्रेसिशन ठीक लगता है आपको कि आप हैंडल कर सकते हो, देन आप डायरेक्टली स्टिक से भी लगा सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये एप्पल ऑफ माई चीक्स, यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से जस्ट आई जस्ट अप्लाई. Okay, so I'm done with my makeup. The last step is of course applying my falsie. So अभी since I'm ready, तो अभी comes to the photography part. अब इसके लिए of course आपको चाहिए एक tripod, और अगर आपके पास tripod नहीं है then आप जुगाड़ू टेक्निक यूज़ कर सकते हो. How? You can just take chairs और उसके ऊपर आप बुक्स रख के एक tripod, अपना जुगाड़ू tripod बना सकते हो. But since I have a tripod, see I'm just setting my phone here, and सेल्फ फोटोग्राफी के लिए ऑफ कोर्स सेल्फ टाइमर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं इसको सोचिए 10 सेकेंड्स के लिए दे देती हूँ ताकि मैं अपने आप को यहाँ प्लेस कर सकूँ. सो आवर फर्स्ट फोटोग्राफी इज गोइंग टू बी द सेम बैकग्राउंड, सेम कलर ग्रूव्स वाला, राइट. तो मैंने यहाँ पर इसको 10 सेकेंड्स में सेट करना है. And I'm going to first take my first photo in a selfie mode, and you have to basically keep trying a lot of poses. So maybe the first pose I can give something like this. I know it looks very funny, okay? It looks very funny. हम लोग सब सेल्फी लेते हैं, लेकिन पता नहीं किसी और को अगर हम लोग देखते हैं कि खुद का पिक्चर क्लिक कर रहा है, बहुत मज़ा आता है हम लोग को. मतलब looks funny, I know, but that's how you have to do. You have to basically love yourself here. So this was my first look. The next one, of course, मैं एक full portrait लेने का कोशिश करूँगी, and in that, let's see if I just pose something like. इस तरीके से आपको बेसिकली ट्राई करते रहना है. एंड मैं कुछ फोटोज़ और लेने वाली हूँ यहाँ पर, और उसके बाद जो बेस्ट फ़ोटो होगा मैं आपको दिखाऊंगी. ओके.
फ्रेंड्स, सो दिस इज़ माई सेकेंड लुक. तो इस लुक के लिए मैं सोची कि थोड़ा सा इंडियन लुक ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वन वॉज अ बिट सेमी वेस्टर्न. इंडियन लुक के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप फर्स्ट. अब बेस तो जैसा हम लोग प्रीवियस लुक में भी किए थे वहीं सेम रहेगा. तो मैंने ब्लेंड कर लिया है कंसीलर को. अब मैं लगाने वाली हूँ सीसी क्रीम. ये कोई भी लुक में आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन बिकॉज सीसी क्रीम इज़ व्हाट आई एम प्रिफरिंग nowadays better than foundation. So I'm directly putting the CC cream onto the sponge and then just dabbing it across the face in dots. And when I'm just going to pull through with the sponge, ये पूरा फेस में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली. और अगर नहीं भी होगा हम लोग कर लेंगे. तो गाइज हम लोग थोड़ा सा चिट चैट भी कर सकते हैं while doing the makeup. So you know, like I think an ideal mind, ideal like हम लोग जब खाली रहते हैं कुछ ऐसा काम नहीं रहता है, या you know बहुत काम भी रहता है, but sometimes we still feel so bored and so uninspired. उस वक्त ना खुद के लिए कुछ करना चाहिए. जैसे कि ये फ़ोटोशूट मैं कर रही हूँ, you know, you must do something for yourself rather than just sitting idly and then trying to worry or you know overthink. Overthinking really is very very dangerous, क्योंकि कभी कभी वो इतना ज़्यादा worry create करता है हम लोग के दिमाग में, जो कि मतलब ऐसा कुछ होगा भी नहीं अपने रियल लाइफ में, बट ऑलरेडी ओवरथिंक कर लेते हैं हम लोग कि हाँ ऐसा हो सकता है, एंड दैट रियली रियली इज़ हार्मफुल. तो इसकी जगह कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स अगर हम लोग ट्राई करें, एंड ट्रस्ट मी क्रिएटिविटी हैज़ नो बाउंड्री. अगर आप सोचते हो कि मेकअप क्रिएटिविटी नहीं है, देन दैट्स रॉन्ग. हर चीज़ क्रिएटिविटी है. मेकअप करना क्रिएटिविटी है. क्रिएटिविटी मतलब भी लोग सोचते हैं कि आइदर सिंगिंग, डांसिंग और यू नो पेंटिंग. नो, लाइक इन फैक्ट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट पीपल थिंक दैट ओनली पेंटर्स कैन बी कॉल्ड एज आर्टिस्ट्स. Yeah, they are artists, it's true, but artist can be anyone. Anybody who deals with any sort of art is an artist. So, you know, like engaging your mind in some kind of activity is extremely enriching, and it definitely keeps you focused on good things in life. और एक चीज़ हाल ही में मैं काफ़ी जगह पढ़ रही हूँ कि एसेंशियल ड्यूटीज़ क्या क्या है और नॉन एसेंशियल ड्यूटीज़ क्या क्या है. सो उसमें से मैंने एक आर्टिकल देखा जहाँ की आर्टिस्ट को कहा गया कि वो लोग नॉन एसेंशियल वर्कर्स है. सो कॉलिंग आर्टिस्ट एज नॉन एसेंशियल वर्कर इज़ रियली नॉट राइट. लाइक हु डिसाइड्स कि कौन सा काम एसेंशियल है और कौन सा काम एसेंशियल नहीं है. Of course, when there is a lockdown, there are certain things which are essential and there are certain things which help in sustaining our life. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीज़ों को worthless बोल दो. Calling artists non-essential is really not right, क्योंकि एक बहुत ही famous डायलॉग भी है, आई गेस इट्स फ्रॉम द डेड पोएट सोसाइटी, जहाँ की यू नो द एक्टर सेज कि ऑफ कोर्स यू नो द intellectual, the cerebral pursuits of our life that keeps our life running, like you know doctors and engineers and all the essential services like the politicians, the administrators. But we are human beings. We live for the finer aspects of life, like you know art, poetry, emotions, feelings. These make us human. You know, you will not see any other animals creating poetry, or you know any other sort of species painting pictures. So you know it is essentially we are human beings, so it makes us more creative, and you know it is we who can appreciate art.
तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा देख के कि ऐसे एक आर्टिकल में लिखा गया कि आर्टिस्ट नॉन एसेंशियल है, इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द वर्थलेस थिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बोलना सही नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता है, कुछ भी कोई भी अगर काम कोई ईमानदारी से कर रहा है तो वो कैसे कभी छोटा हो सकता है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली गुड। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग लॉरियल ट्रू मैच कॉम्पैक्ट, like this is I have of course done my base with the CC cream, and now I'm just applying this powder or the compact as you call it to set the base. और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, आज मैं कॉन्टूर पहले करूँ या आईज? नहीं, ठीक है, आईज ही पहले करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई अ बिट ऑफ अ ड्रामेटिक लुक। तो मैं ये अपना दिस शिमरी शेड्स, तो इसमें से मैं ये ब्लू कलर यूज़ करूँगी ना, वाइट ब्लू, बिकॉज़ मेरा ड्रेस जो है जो मैं इसमें पहनने वाली हूँ वो ब्लू कलर का है। तो हम लोग ये ब्लू शेड यूज़ करेंगे एंड आई विल शो यू अ ड्रामेटिक लुक। लेकिन ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं इसमें ब्लू शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यू ऑलवेज हैव टू यूज़ अ ब्लू शेड। You can match your eyeshadow with any color that your costume is, and you just have to follow the same techniques that I'll show you in building your eyeshadow. But otherwise, my eyeshadow palette just fell. I hope it did not break. बहुत दुख होता है गाइस, बहुत दुख होता है अगर ये टूट जाएगा तो। It did break. One color broke. It just came out like this. Thank God most of the colors did not break. For a moment, my heart almost came out. Just this color broke. This one. ये बहुत ही अच्छा शेड भी था। ठीक है, चलो, most of the colors did not break, so it's okay. So that's my base. My base is done. I think it already looks so nice. If you can see, this shimmery color is very nice of Huda Beauty. But इसके ऊपर of course I'm going to build up a little bit more with the blue shade that I showed you from my previous palette. And इसके लिए I will take a thinner brush. Let's use this one. मैंने ले लिया है ब्लू कलर का शेड, और इससे मैं अपना जो कॉर्नर्स है आँखों का, उसमें थोड़ा सा ये जो, इफ़ यू कैन सी प्रॉपर्ली, ये जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में मैं बिल्डअप करना स्टार्ट करूँगी। Come a bit hither. Yeah, I think now it will be better visible. And pull it inwards. Okay, start from the corner, pull it inwards. The stroke should be inwards. And then you can keep building it on this area and also pulling it. Try to make a thin line on the inner corners.
taking this shade of blue and I'm gonna mix this with a bit of, this golden color. The reason being, I just want it to be a little lighter. Also I'm gonna mix this with the previous shade of blue. तो ऐसे इस तरीके से आप build in कर सकते हो. देखिए ये ऐसा है, लेकिन इसके साथ मैं जैसे ही ये blue mix कर रही हूँ ये और darker हो जा रहा है. तो you can keep building and forming your own shades even if you don't have all the shades in your eyeshadow palette. That's completely okay, because इस तरीके से आप बना सकते हो. इट्स इक्वल टू पेंटिंग और ड्राइंग. जैसे कि हम लोग अपना शेड्स बनाते थे, हम लोग टीचर सिखाते थे हम लोग को, तो इस तरीके से आप बना सकते हो. परफेक्ट. तो आई गॉट माई परफेक्ट शेड ऑफ ब्लू. उससे आई एम जस्ट डूइंग द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज. इट इज़ यूजली समटाइम्स द अदर वे अराउंड, बट यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द ऑपोजिट. बाहर का सबसे मैं डार्क बनाया है और फिर इनर कॉर्नर्स को मैं थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एकदम डार्केस्ट जो शेड है वो बाहर रहे. अगर आई शेडो बनाते वक्त कुछ कलर्स एक्स्ट्रा कलर्स बाहर गिर जाए, यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन ऑलवेज वाइप इट विद अ ब्रश या स्पंज. Nothing to worry. और बाहर का भी जो ये कॉर्नर्स हैं, you can always wipe it off in this way. So beneath your eyebrows, apply some highlighter. In order to demarcate your eyebrows from the section of the eyeshadow. So once you've applied this, of course, with the help of a blending brush, you can just blend it. But I think this look somehow demands a lining. So I feel that I'm going to just do a winged eye look on this. It will look good. Whatever you call this. I'm using this sketch pen eyeliner for drawing my winged eyeliner look. This looks amazing. Yeah. Best decision ever. मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है हमेशा. Actually, I've got slight bit more power on my right eye. तो जब भी ये वाला लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से देख के आईलाइनर पहनना होता है ना, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आई कांट सी दैट क्लियरली. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग द हाईलाइटर. मैं थोड़ा सा अपने देखिए यहाँ पर लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर लिया, जस्ट ऑन द कर रही हूँ. आई सेड कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ.
it's just it just makes your lips look very plump. So that is a place, and मैंने अपने inner corner of the eye में भी apply किया है to create a nice look. Is it going to rain? And अपने nose के ऊपर apply किया है, and the rest of the portion I'm going to apply after I do the contouring. So with the help of this brush, I'm going to take the beige color contour powder, brush it off. But मैं सिर्फ ये आज contouring करके नहीं छोड़ दूँगी, मैं थोड़ा blush भी apply करूँगी. Applying a bit on the forehead to add some color, but that's the basic contouring done. And then just blend it very nicely. Make sure the brush is empty, doesn't have the color. So I think my contouring is done, and some highlighter here. So my makeup is done, and I'm just going to apply my falsies, and they're good to go. I'm just applying the mascara to see that how much I need to basically do for the eye. Okay, now I'm going to apply my falsies. हेलो, सो आई एम रेडी. तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये एथनिक लुक होगा, एंड मैंने अपना आई शेडो ब्लू किया है, क्योंकि अगर आप मेरा ड्रेस देख रहे हो तो दिस इज़ अ ब्लू कलर्ड एथनिक ड्रेस, एंड this is my background. I really liked this. Basically I've taken 3 sarees, very flowy chiffon sarees of my mom, and ये 3 कलर का ऐसे मैंने प्लेस किया है ताकि एक वेरी इंडियन लुकिंग बैकग्राउंड मैं क्रिएट कर सकूं. और अभी मैं अपना मोबाइल रखूंगी इस ट्राइपॉड में, एंड हम लोग कोशिश करेंगे सम नाइस फोटोग्राफी. चलिए. तो मेरा थर्ड और लास्ट लुक या लास्ट फोटोग्राफी जो मैं ट्राई करने वाली हूँ
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत क्रिएटिव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्लोज शॉट्स मैं लेने वाली हूँ. एंड सिंस आई एम गोना टेक क्लोज शॉट्स, आई एम गोना रिड्यूस माई मेकअप बिकॉज प्रीवियस लुक वॉज very dramatic. So if you can see, I've already removed the red lipstick that I was wearing and I'm just putting on some lip gloss. And I'm almost done with the lip gloss. और एक चीज़ जो मैं करने वाली हूँ, ये स्पंज मैं लूँगी और आई शेडो के ऊपर हल्का से मैं बस ऐसे कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके. इसको कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा, बस इसको थोड़ा मिनिमलाइज करने के लिए मैं ये करने वाली हूँ. And then we'll straight away go to the photography. Hello. तो अभी हम लोग जो फोटोग्राफी करने वाले हैं, in that I'm using some kitchen items जैसे कि ये वाला, then I'm using this, and you can use any this kind of a netty item. Basically a basket जो है, ऐसी कोई item हम लोग जब use करेंगे, and I'm using the dinky light with it. तो इससे क्या होगा, when you put this object against the light, it's going to fall in such a manner that it's going to form a pattern on your face, and then you can hold like the phone in one hand and this thing in the other hand, and इस तरीके से आप अगर फोटोग्राफी करोगे तो बहुत क्रिएटिव दिखता है, एंड लाइट एंड शैडो का एक अच्छा गेम होता है. तो आप देख सकते हो कि व्हेन आई एम होल्डिंग, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा रूम बाकी डार्क होना चाहिए. And you can see that there is this effect on my face. Yeah, तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे फोटोग्राफी में. देखिए मेरा सेटअप तो रेडी है. आई एम जस्ट होल्डिंग दिस यूटेंसिल इन माई हैंड, और उसके साथ मैंने ये जो नेट है इसको मैंने ये लाइट के साथ लगा दिया है, फिक्स कर दिया है. तो आप कोई स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो फिक्स करने के लिए. एंड इसका इफ़ेक्ट मैं आपको दिखाती हूँ. इसका इफ़ेक्ट अगर आप देख सकते हो, वॉल के ऊपर ऐसा पड़ने वाला है, एंड इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स सो एस्थेटिक. तो ये मेरा नेक्स्ट वाला जो फोटोग्राफी का आइडिया था, तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे लाइट में सेटिंग किया. एंड नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑन द वॉल. बेसिकली इट्स गोना बी दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट, एंड यू कैन लाइक give very sensuous poses in this, क्योंकि since it's a low light photography, और इसमें you know it looks like very aesthetic, so some sensuous poses will look very nice. and इसमें आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा soft makeup करने का. Soft makeup will look nice in this particular light. And yeah, so that's how I'm going to take my photo. हेलो. तो मैं अभी इसके साथ बेसिकली ट्राई करने वाली हूँ. ये मेरा एक जैकेट है. अगर आपके पास ऐसा कोई टेबल क्लॉथ या कोई क्लॉथ हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट सिंस आई डिड नॉट हैव, आई एम यूजिंग माई जैकेट. तो आई शो यू बेसिकली हाउ इट्स गोना लुक. आई नो आई लुक लाइक अ गोस्ट, बट इसके नीचे असल चीज़ है. येस, नाउ यू कैन सी बेसिकली इट्स गोना लुक लाइक दिस. तो अगर आप देखो तो ये लाइट का इफ़ेक्ट ऐसे पड़ने वाला है, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोना टेक माई पिक्चर्स. तो ये आप बेसिकली यू कैन टेक योर पिक्चर्स लिटिल फ्रॉम क्लोज एंगल्स. अगर आप देख सकते हो, जितना आप क्लोज आओगे उतना बेहतर आएगा पिक्चर्स. एंड यू कैन प्ले विथ मे बी यू नो जस्ट पोजिंग इन दिस वे, वन आई जहाँ पर दिख रहा होगा, या यू नो यू कैन जस्ट प्ले विथ द क्लॉथ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इस तरीके से यू हैव टू प्ले. एंड एज यू कैन सी कि ये जो होल्स है इसके थ्रू द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन माई फेस. सो ये इफ़ेक्ट बेसिकली हम लोग को चाहिए, बट बाहर से ऐसे लगेगा. तो कोई अचानक रूम के अंदर अगर आ जाएगा सोचेगा कि आप पागल हो गए हो. सो डोंट लाइक scare someone, but this is how you can take the photos.
तो ये था हम लोगों का सेल्फ फोटोग्राफी वाला वीडियो। इसमें हम लोगों ने मेकअप सीखा, स्टाइलिंग सीखा और उसके साथ क्रिएटिव फोटोग्राफी घर पर ही कैसे कर सकते हैं ये भी सीखा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? इससे आपने कुछ सीखा और आपने ट्राई किया क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्वीन ऑफ हैप्पीनेस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एज क्वीन ऑफ हैप्पीनेस राजरूपा। मेरा फेसबुक पेज है क्वीन ऑफ हैप्पीनेस नाम में। एंड अगर आप चाहो कि आप मुझसे रेगुलरली इंटरेक्ट करो, मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए एंड ये चैनल को भी फॉलो कीजिए। मैं और भी एक्साइटिंग कंटेंट लेके बहुत जल्दी वापस आऊंगी। So till then, take care, long live our happiness. Bye bye. একটু ডান দিকে আসো, একটু ডান দিকে দেখা যাচ্ছে, দরজা ঠিক থেকে দেখা যাচ্ছে, একটু এদিকে যা, এইদিকে এদিকে এদিকে আসো, ব্যাস পেছনে যাও পুরো। गाइस मैं एक मास्क पहन के जाऊंगी और ये एक्स्ट्रा मास्क है जो मैं वापस आने के टाइम पहन के आऊँगी। तो लेट्स कीप दिस हियर। तो मेरा बेसिकली एक लेंस एप्लीकेटर है, उसकी हेल्प से मैं कोशिश करूँगी पहनने का। इवन आई एम नॉट गुड एट इट, इवन दो आई वेयर लेंस ऑलमोस्ट एवरी वीक। सो यू नो वी ऑल आर नॉट गुड एट एवरीथिंग बट वी कीप लर्निंग। लॉरियल का ये कॉम्पैक्ट इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर टीयर ड्रॉप्स की वजह से, पर मेकअप नहीं हट रहा है। इट्स रियली गुड, ट्रूली वाटरप्रूफ, राइट? तो एमटी कॉटन जुड़िए না না तो
বাচ্চারা বলছিল রিজি ফোন করো না গো এই সুন্দরবনে। ওগুলো বাচ্চা থেকে যাবে ফোন করতে সেদিন এখন হ্যাঁ Hello, so I'm ready, and as I said that this is going to be a ethnic look, and my makeup, if you can see, it's complete. I quite like it, and if you can see that I've done it blue because मेरा जो dress है इसमें वो भी blue color का है. और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए जो आप लोग कर सकते हो, मैंने अपने मॉम का 3 साड़ी लिया है. Chiffon sari, you know, that very suave and sexy chiffon, very flowy and sexy looking chiffon sarees. तो मैंने ये 3 कलर का एक बस्ते goods. So I've just placed the sarees like this, and I'm going to sit in this position here and do the photo shoot. So let's do it.